Welcome back everyone to English Wings. So welcome to day 4 of spoken English course. So today we are going to discuss the conversation between two friends. Here we are going to see how two friends can discuss anything about any topic with each other in fluent English. So first of all, here are some tips for talking to a friend. Because whenever we talk to someone, there is a specific way to talk to a teacher, to talk to a parent, to talk to a friend, to talk to a sibling. हम लोग हमेशा एक अलग डिफरेंट वे में बात करते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप दैट वी हैव इन आवर लाइफ. So there are some rules for talking to a friend. First, start by saying hello when you meet them. So this is a very icebreaker type of thing, that when you say hello, you feel that confidence in yourself that you can initiate the conversation further. Second, recall any detail about your friend. So when you are meeting, you can discuss about any other thing that you have missed out, or you can recall about your friendship, about the friend in front of you. So you can discuss the details as well. Next, keep an open, welcoming posture, because posture matters a lot. So always keep an open, welcoming posture in front of a person, in front of any other person that you are talking to. Next, ask open-minded question. That means you should have an open mind. Don't judge. That's another point. But always have an open mind. Do not have a narrow-minded opinion of any thought, because आपने पहले से assume करके रखा है, आप वही answer को expect कर रहे हो. Don't do like that. Next, be a good listener. You should be a good listener, because when you are conversating with anyone, आप अगर listener नहीं हो तो you cannot focus on that. आप focus नहीं कर पाओगे. You cannot communicate very well. Next, don't judge. Don't ever judge, because सबके अपने opinions होते हैं. Because आपको अगर एक conversation करना है अपने friend से, because he or she is your friend. Next, don't interrupt. Don't interrupt in any conversation, because आपको सामने वाले को भी अपना point रखने देना होगा. तभी आप अपने पॉइंट को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि आपको तब पता होगा कि आपके फ्रंट वाला, सामने वाला पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है. सो फर्स्ट, conversation on pre-exam discussion, because students are often seen discussing their examination preparation with their friends. So here are two persons, A and B. First, A tells, how is your preparation for the exam going on? That means वो उसके प्रिपरेशन के लिए पूछ रहा है कि उसके एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. हाउ दैट मीन्स कैसा चल रहा है. बी सेज, नॉट टू बैड, मतलब उतना भी खराब नहीं. ओवरऑल की बात हो रही है. आई एम वरीड अबाउट इंग्लिश, यहाँ पे उसने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बात कही. दो, हाउ इज योर गोइंग ऑन, आपका कैसा चल रहा है. दैट मीन्स आपने अपना आंसर दिया, साथ ही साथ आपके सामने वाले को एक क्वेश्चन भी दे दिया, ताकि वो कन्वर्सेशन चलता रहे. A says, mine is alright. I am also finding English to be bit challenging because of its vast syllabus. तो आप सामने वाले से agree कर रहे हो अपना opinion रखकर. B says, the syllabus has been a problem for me too. Can we study English together? तो so you can see that अभी फिर से एक sentence खत्म हुआ and he asked a question. A, sure, I think it's a good idea. Can you help me with English grammar though? मतलब इसमें क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिस्कस अ सब्जेक्ट. बी, येस आई कैन. वेयर एग्जैक्टली इन इंग्लिश ग्रामर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम. सो वो कहता है कि हाँ तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है. तो ये उसने फिर से एक आंसर दिया और एक क्वेश्चन को इनिशिएट किया. ए सेज, थैंक्स. उसने उसके यस के आंसर दिया, थैंक्स, बिकॉज दिस इज कॉल्ड कर्टेसी. प्रीपोजिशन एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आर द प्रॉब्लम एरियाज फॉर मी. तो उसने उस क्वेश्चन का भी आंसर दिया, साथ ही साथ उसने इस चीज़ को रेस्पॉन्ड भी किया. बी सेज, एज फार एज प्रीपोजिशन आर कंसर्न्ड, I can help you in understanding the rules, but for reading comprehension you need to put in lot of practice to get better at it. So उसने इसके लिए हेल्प दी और इसके लिए एक सजेशन सजेस्ट किया. So उसने दोनों बातों को रिस्पॉन्ड किया. दैट मीन्स कि ए एंड बी बोथ आर वेरी गुड लिसनर्स, बिकॉज अब लिसनर नहीं होते तो आप इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते. सो ओके, आई विल डू.
हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर अदर सब्जेक्ट्स. तो आप वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ वो हेल्प करेगा एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए वो क्या करने वाला है. बी सेज all the subjects are more or less on track but I don't think I will have enough time to revise the subjects. So अब उसने उस बात का रिस्पॉन्ड किया कि हाँ उसके सब्जेक्ट्स ठीक चल रहे हैं बट उसे रिविजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. ए सेज यस आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट एनफ टाइम फॉर रिविजन. वो भी अग्री करता है. एनी वे वी हैव टू मैनेज इन वॉट एवर टाइम वी हैव. बट हमें मैनेज करना होगा. B says that's right, okay, enough of talk, let's get back to study, all the best for your next exam. So उसने कहा कि ओके ठीक है, अब वो कन्वर्सेशन को एंड कर रहा है. वो ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन. इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो येट आई विल share the link in the description box below. It is discussed in the day 2 of spoken English course. All the best for your next exam. So उसे wish किया and he's bade a goodbye. A says thanks, all the best to you as well. So उसने भी all the best उसे wish किया. Conversation on post exam. अब post exam पे आप कैसे discuss कर सकते हो. A says the paper was long, wasn't it? Wasn't it मतलब ये past में हो चुका है इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं था क्या. B says yes, unusually long मतलब usually वो चीज़ नहीं होता है इसलिए unusually. For sure, we won't see as many 95 plus marks in English this year. So अब won't see मतलब हम कभी देख नहीं पाएंगे इतने ज़्यादा मार्क्स इस ईयर में इंग्लिश में. A says how did you do? तुम्हारा कैसा हुआ. So that means average. I wish I had timed myself better. Timed means होता है अपने आप पे टाइमिंग सेट करना, टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना. In the end, I left questions worth 10 marks unattempted. How about you? तो उसने फिर से रिस्पॉन्ड किया और उसके बारे में पूछा. A says, I started off well, but this year's reading comprehension passages were just too tough for me. So here also too. That means too means exaggerating a word. Exaggerating मतलब होता है कि एक word को आप ज़्यादा focus करके बताने की कोशिश करो कि that was very intensified. And it completely derailed. Derail मतलब पूरी तरह से रेल को जो एक ट्रैक पर जब एक ट्रेन चलती है दैट मीन्स वो रेल पर चल रही है. जब भी वो ट्रैक से उतर जाते हैं दैट मीन्स डीरेल्ड मतलब आपके ट्रैक पे कुछ नहीं गया. अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स कुछ नहीं हुआ. माई टाइम मैनेजमेंट. बी से सो डिड यू टू फेल टू कम्प्लीट द पेपर. क्या तुम भी फेल हो गई. अब यहाँ टू का मतलब एग्जैजरेटिंग नहीं है. यहाँ पर टू का मतलब है कि क्या मैंने किया तो तुमने भी ऐसा ही किया. A says, I did somehow manage to complete, but in the last few minutes I had to hurry so much that I guess I made quite a few mistakes. Which parts in the paper did you find particularly challenging? तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से एक फ्रेंड रिस्पॉन्ड कर रहा है तो दूसरा फ्रेंड उसे एक क्वेश्चन आस्क कर रहा है. आपको एक दिन में फर्स्ट डे आपको इन सब चीज़ों का एक बार में क्लियर नहीं होगा बिकॉज इन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करने होंगे. आई विल ट्राई टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स एज वेल. सो बट आपको इन चीज़ों को ब्रेक कर करके कोशिश करनी है बिकॉज वेन एवर यू विल ट्राई यू विल लर्न अ न्यू सेंटेंस एवरी टाइम. सो आपको ग्रामर टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इतना नहीं सोचना है बिकॉज आप उतना वेट नहीं कर सकते हो कि मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश करूँगा देन आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. नो, नॉट लाइक दैट. आप स्टार्ट करो. यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स ग्रेजुअली जब आप स्टार्ट करोगे. सो स्पीकिंग ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज आपको यहाँ पे कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना है. यू आर लर्निंग टू हाउ टू स्पीक. आपको जब कोई चीज़ को स्पोकन वे में सीखना है सो यू डोंट हैव टू लर्न एनी बुक. यू जस्ट हैव टू हैव एक्सपीरियंस बिकॉज प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस आपको ये सारी चीज़ें सिखा देगा. नेक्स्ट, इंग्लिश हैज़ नेवर बीन माई फोर्ट मतलब कि वो कभी भी उसका फोर्ट मीन्स होता है आपका ईजी एरिया नहीं है. एंड आई फाउंड इवन पार्ट्स ऑफ ग्रामर टू बी चैलेंजिंग बिसाइड्स द यूजुअल कल्प्रिट रीडिंग कम्प्रिहेंशन. तो वहाँ पर उस चीज़ को वो कल्प्रिट बोल रहा है. ए वेल कांट डू मच नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन केमिस्ट्री. तो सो जो हो गया अब हम नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं. बी यू आर राइट लेट्स गेट बैक टू स्टडीज फ्यू मोर हार्ड डेज टू गो. तो इस तरह से उसने अपने कन्वर्सेशन को फिर से एंड किया. सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रेंड के साथ हम किस टोन में एक ओपन माइंडेड के साथ बात करें कि वो लोग ओपनली पूरे डिस्कस करें कि हाँ उनमें ये प्रॉब्लम था वो उससे ये हेल्प चाहता है. ही इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, ही इज़ ऑफरिंग अ हेल्प, दे आर सजेस्टिंग ईच अदर. सो ये ओवरऑल कन्वर्सेशन था. ट्राई टू लिसन इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू कैन हैव सम वर्ड्स vocab so that you can use those words in your sentences as well.
try to learn those sentences, try to practice sentences, and please do watch every Sunday spoken English course on English Wings. If you all like the content, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.